Okay, students, so today I'll tell you how to fill the OMR sheet properly for your CBSE exam. So here is your admit card. I have taken one admit card, a question paper of science, and a sample answer sheet. This is how your answer sheet will look like. So let's begin by filling. Okay, so first of all, if you see, I'll just enlarge it. On the left hand side, okay, I hope this is clear. Wait, let me clear this up a bit for you. Okay, this is clear now. So the left hand side we have taken. So first of all, you have subject. Okay, so you see whatever your subject is and fill in caps science. Okay, then your subject code. Now subject code, students, is there in your paper, in your admit card. So here you see there's science, so subject code is 086. The invigilator will also mention this on the board, but still you have to confirm it from your admit card and check, and you have to put the same subject code here. Okay, so for science it is 086. So now for science you have put 086. Now day and date of examination. So you have added, suppose I have just added Monday, I don't know what day it is exactly, and then the date. Now if you see here, I have done this mistake. Okay, I have done this mistake intentionally to show you that there is so less space. So try to write it small so that the date also fits in. Okay, nothing should go outside this box. Okay, so pay attention here. Then the medium of answering the paper. So whether it is English, Hindi, whatever your medium is, write that medium. For my daughter, I am filling this. This is English. Now here there is code number and set number. So you have to check it from the question paper. You see here the question paper. Okay, let me show you. So on the above right hand side corner, you will get this question paper code and set. So here the question paper code is 3121. Okay, whatever the question paper code is in whatever format, you have to fill it that here. Then set number was 2. So here there are 1, 2, 3, 4. So I have filled this 2. Now you have to be really careful. You have to use only blue and black ballpoint pen. No gel pen, no pencil, and no overwriting. You are using gel pen because this type of things, okay, this OMR sheet, it has to be very dark. जो आप सर्कल्स बनाते हैं इतने डार्क होने चाहिए क्योंकि मशीन रीड करती है. The machine reads it. So you have to first, so suppose your set number was 4. So how you have to fill? You have to first circle it like this, dark with a firm hand, and then you fill this. Nothing should come out of the circle. It should be completely filled, and it should not be filled like this as well. ना ऐसा भी नहीं होना चाहिए. It has to be, and there has to be no overwriting. भूल से आपने 2 लिख लिया और फिर 4 किया तो ये valid नहीं है. That is why I am telling you कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. बहुत सारे डाउनलोडेबल फॉर्मेट्स है, आप उसे डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. जैसे जैसे मैं ये सॉल्व कर रही हूँ, आप भी सॉल्व करते जाइए. जैसे मैं फिल कर रही हूँ वैसे आप भी फिल करते जाइए इसे. ठीक है. Now number of supplementary answer book used. If you have used any supplementary books, you can add the number. Suppose you have added 1, so you write 1. If you have not used anything, just leave it. You can put a dash, or you can put a cross, or you can write a no. Okay, simply leave it and ask your invigilator. Now, person with benchmark disabilities. If there is someone who is with a disability, they'll write yes, otherwise you can write no. Okay, code of disability as per the admit card. अगर वो डिसेबिलिटी वाला कोई बच्चा है तो उसके एडमिट कार्ड पे कोड दे रखा होगा, वही कोड आपको यहाँ लिखना है. अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ क्रॉस लगा सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, NA, जैसे मैंने यहाँ नीचे NA लिखा है. ठीक है. नाउ वेदर राइटर प्रोवाइडेड. अगर आपने राइटर यूज़ किया है, येस और नो, तो यू हैव रिटन नो. इफ़ विजुअली चैलेंज्ड, नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज. अगर आप विजुअली चैलेंज हो तो आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है.
मेरे लिए तो मैंने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है यहाँ, ठीक है। अब ये तो ऑफिस यूज़ के लिए है। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स बोला है। सो आपको जब आप ये नाम लिख रहे हैं, आप, मुझे पता है आपको अपना नाम पता है, लेकिन फिर भी हर बार आपको एडमिट कार्ड खोलना है। एडमिट कार्ड में जिस फॉर्मेट में आपका नाम है, ठीक है, उसी तरीके से आपको नाम लिखना है। कि किसी किसी बच्चे का हो सकता है कि मिडिल नेम हो बीच में, किसी का नेम और सरनेम हो, ठीक है। तो जैसा एडमिट कार्ड में है वैसा ही आपको लिखना है। तो यहाँ इरम जयपुरी है तो मैंने वैसा ही इरम स्पेस जयपुरी लिखा है। देन यू हैव टू फिल इन दिस नंबर्स। तो ये नंबर्स फिल करते वक्त बहुत ध्यान देना है, स्केल का यूज़ कीजिए आप, ताकि आप दूसरी लाइन में ना चले जाए। अब ये फर्स्ट वाले के लिए आई है तो आई एम यूजिंग दिस। नाउ आई विल चेक वेयर इज आई। सो ABCDEFGHI। सो आई को मैंने कंप्लीटली फिल किया है। देन नेक्स्ट नेम आर, देन कम हियर आर। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू फिल दिस। स्पेस वाले में उसको खाली छोड़ना है, जयपुरी का आई। ओके, सो दिस इज हाउ आई हैव फिल्ड। इसको पूरा कंप्लीटली फिल करना है। मैंने ए तक फिल किया। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ आई नेक्स्ट वाला। तो स्केल से क्या होगा, आप इधर उधर नहीं जाओगे, आई पे आ जाइए। पहले इसको अच्छे से सर्कल बनाना है, धीरे धीरे करना है, कोई जल्दी नहीं मचानी है, बहुत टाइम होता है अपने पास। ओके, देन यू सी पी। क्योंकि अगर आपने यहाँ रॉन्ग कर दिया तो आपको वापस से दूसरे आंसर की नहीं मिलेगी और ओवर राइटिंग भी अलाउड नहीं है। तो धीरे धीरे एक एक लेटर को आप क्या करो, जैसे आपको यहाँ पे यू लिखना है, राइट। सो सेलेक्ट यू, एक बार डॉट बना दो, फिर से चेक करो, कहीं ऐसा ना हो कि स्केल ऐसा हो और यू दूसरी वाली लाइन पे हो गया है, ठीक है। तो कंफर्म करो, एक छोटा डॉट बना के, इससे भी छोटा डॉट बनाना है, कंफर्म करो हाँ मैंने करेक्ट किया है। फिर इसे अच्छे से पहले सर्कल बना दो ताकि आप इसके बाहर ना जा रहे हो, और फिर इसे फिल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ रोल नंबर आपको याद ही हो जाता है, आप इतनी बार लिखते हो, लेकिन फिर भी हर बार एडमिट कार्ड खोलिए। एडमिट कार्ड में देखिए कहाँ की तरफ आपका रोल नंबर होता है। दिस इज योर रोल नंबर। ओके, सो ऐड दैट रोल नंबर हियर अकॉर्डिंगली। इसको भी वैसे ही फिल करना है। अब यहाँ देखते हैं, नीचे आते हैं, विषय कोड और केंद्र संख्या, सब्जेक्ट कोड एंड सेंटर नंबर। ओके, सो इधर ध्यान से आप देखेंगे, सेंटर नंबर इज देयर ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। सेंटर नंबर इज दिस। ओके, तो सेंटर नंबर आपने यहाँ पे ये कॉपी कर लिया, उसी तरीके से उसको फिल करना है। 810। अच्छा, जीरो के वक्त ध्यान रखना बच्चों, जीरो बहुत से बच्चे ना बहुत जल्दी मचाते हैं, तो क्या करते हैं, जीरो ऊपर देख लेते हैं, नहीं, यहाँ 1 से शुरू होता है, जीरो एंड में होता है, ठीक है। तो जीरो यहाँ है बच्चों, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, एकदम काम माइंड से करना है ताकि आपके हाथ ना कांपे, ठीक है। इसे भी पूरा फिल करना है। अब यहाँ हम नीचे आते हैं, यहाँ है सब्जेक्ट। यहाँ भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, जबकि कितना सिंपल कॉलम है सब्जेक्ट। अब आपके देखिए बच्चों, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आप कितनी बार क्या होता है, बच्चे मैथ्स लिख लेते हैं, नहीं, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। अगर मैथमेटिक्स है, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड, जनरल है तो जनरल। आपको फिर से यहाँ देखना है। देखिए इंग्लिश में भी ऐसे ब्रैकेट में लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सेम एग्जैक्टली जैसा यहाँ है वैसा ही लिखना है। जैसे यहाँ देखिए सोशल साइंस, अगर आपने सोशल स्टडीज़ लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, सो एग्जैक्टली जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही सब्जेक्ट आपको यहाँ लिखना है, करेक्ट। देन योर रोल नंबर इन वर्ड्स, तो यहाँ करोड़ लैक्स ऐसे कॉलम दे रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, फिर से अपना ये खोलना है। यहाँ देखिए वर्ड्स में अच्छे से दे रखा है, अपनी मैथ्स नहीं लगानी है, यहाँ से देख के कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। देन फादर्स और गार्जियंस नेम, इन दिस केस ऑल्सो कम हियर, चेक इट वंस मोर एंड देन फिल इट। ओके, देन यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको यहाँ करना है, ठीक है। अब दिस इज फॉर, दिस इज नॉट फॉर यू, ओके, दिस इज फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। अब नेक्स्ट पेज आप देखिए, ये पार्ट पूरा एग्जामिनर के लिए है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमें फिल करनी है, ठीक है। ये देखिए
code number as written on the top of the question paper provided. So this is your code number. Okay, ये कोड नंबर आप यहाँ लिखेंगे. देन नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड, अगर आपने 1 यूज किए तो 1, 0 यूज किए तो 0 या फिर नथिंग. ओके, देन अगेन योर रोल नंबर हियर. सो ऐड योर रोल नंबर यहाँ पे, रोल नंबर इन वर्ड्स. देन अगेन सब्जेक्ट कोड, सॉरी आई फॉरगॉट दिस. रोल नंबर इन वर्ड्स के बाद आपकी क्लास, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, एवरीथिंग यू हैव टू कीप ऑन फिलिंग. हर चीज़ आप कैपिटल में ही फिल कीजिए, ठीक है. देन मीडियम ऑफ आंसरिंग, क्या मीडियम ऑफ आंसरिंग है आपका? इंग्लिश है, सो राइट दैट. परीक्षा का दिन, डे एंड डेट, तो आपको डे यहाँ लिखना है, डेट यहाँ लिखनी है, ठीक है. जिस फॉर्मेट में डेट दे रखी है उसी फॉर्मेट में डेट लिखनी है. ये देखिए, इस फॉर्मेट में आपकी साइंस की डेट दे रखी है. अगर आई डोंट नो व्हाट डे इट इज़ तो आप कंफर्म करके ये करना. हाँ, मैं सैम्पल बना रही हूँ सिर्फ, ठीक है. देन योर सिग्नेचर अगेन हियर, ओनली दिस मच यू हैव टू फिल. समटाइम्स दिस इज नॉट गिवन, यू हैव टू फिल ओनली OMR. तो आपको सिर्फ OMR फिर फिल करना है, वो जो मैंने आपको सिखा दिया है. अब बच्चों मेरा नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना, क्योंकि मैं उसमें आपको सिखा रही हूँ कि जो आंसर शीट होती है उसमें आंसर कैसे लिखना है. ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर किस तरीके से लिखने हैं. यू डोंट हैव टू यूज दिस, यू हैव टू मेक वन मोर रफ कॉलम. अकॉर्डिंगली आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज गो ahead and even if you have any questions you can write in the comment box below. Thank you.